as the speaker who spoke earlier have given a detailed account, particularly how the fight between Nizam and his private army Razakars was going on in the entire part of this country. We should appreciate the bold step of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel, who made a very big Operation Polo with the help of police, and that resulted in the independence to this part of our country. So the Amrit Mahotsav of North Karnataka, from where I belong, particularly the districts of Gulbarga, that is Kalpi, Bellary, Raichur, Yadgir, Vijayanagar, Bidar and Koppal, we all were finding it very appreciable when this independence came from the brutal activities of Nizam through Razakars. And I was thrilled to listen the earlier speakers who were individually mentioning about the names of the people who fought for this independence and who were sacrificed their entire life or their entire wealth for this particular thing to happen in this part of our country. From Gulbarga and Kalburgi area in this part, along with Swami Ramananda Tirth, Govind Bhai Shroff, people like Vidyadhar Guruji, V.P. Devagaonkar, Narayan Rao Pawar, all were in forefront to find the ways to fight against Razakaras and bring awareness amongst the people to see that the dawn of independence prevails in this particular area like other country. I should also mention the names of Chanmasappa Kulgeri, Nagappa from Raichur, Shivkumar Swami, Bhimanna Khandreji, who was already mentioned, Kollur Meleshappa. So we have series of people from this North Karnataka area who really made an army and they fought for the cause of getting independence, particularly the way by which the Razakars were treating the population and then come out of that. So the particular area, this area is quite rich in history, in culture, in talent, because the area where we have Vidyaneshwara Peetham, which gave the Bharat and Paddhati to the entire country, the area which has the Mahaviracharya people, mathematician like that, we have Tikacharya around us, and the entire region is blessed by the work and blessings of Lord Basaveshwara. So area like this was suffering from long time, and there was a need to form a new part of this North Karnataka, which is now named as Kalyan Karnataka by the government, is looking forward now to come out of all these atrocities which were happening to the population and then enjoy the benefits of the freedom and have a different type of atmosphere in this part of our state. As all of you know, this is the area which is considered most backward. This remained backward because the ruler that time was seeing that this area would develop. If the people would get the choice of living their own life, worshipping or going for education. The literacy was very low because the ladies were not given chance to become literate, go to the various positions of higher area. So these all things were the ones which are responsible for backwardness of this North Karnataka, particularly this Hyderabad Karnataka area, and that's why lot of efforts have been made by the leaders by that time as well as the present leaders to see that we come out of that, and upliftment has become a very big task. As you know very well, Article 371J is given to this area, but we cannot see the progress as we can see from other parts of Nizam rule parts like Telangana, for example, is growing now. The Vidarbha has done a lot of achievements, Marathwada has done, and Hyderabad has, you can see. But that particular thing needs to be worked out now. So this is the day when we have gathered here to remember all these warriors who have fought to get this freedom. It is the responsibility of all of us to see that those fruits are now given to the present generation. Just bringing Article 371J and giving reservation to the people who belong to this area is not working, because we are still seeing the developments are still slow. Migrants are still going. In fact, those people who are getting benefits of 371J are going outside and other
parts of the country or other parts of the state and world is getting developing. So we need to see that whatever has happened, whatever has experienced by our forefathers, we should come out of that and see that the development happens in a way which is happening in other parts of country or other parts of world. Hyderabad Karnataka Development Board, as well as the Hyderabad Karnataka Cultural Society, all these organizations are looking forward to see that the new era starts in this particular area. So this is a day when we are remembering the fighting, the spirit of the people of this area against Razakars, and then how we got the freedom out of that. It is a time now to make the pledge to work for the entire area through education, through development of the industries, through development of infrastructure, and all those things are happening. But we have to see they reach to the real people who have suffered during the Mukti Sangram, or during the way by which the people have been pushed back during the Mukti Sangram, and they need such type of benefits which we have to give. I wish that the education, if you take, because from that area I come, several universities have been announced in this area. I wish one of those or two of those universities can be made as a skill university, so that whatever culture is there, whatever new skills are there can be adopted. We can have a separate programs to achieve the success which is required in industries, because that is the one which is going to change the entire scenario. We should bring lot of changes in the healthcare system, in the education system, in the primary healthcare, nutrition. So these things are on the cards. I am happy that the government and private bodies and organizations are working on that. But the real speed will come. And this particular event which we are today to remember all those who fought during the Mukti Sangram, and then as earlier speakers also told, should place today whatever dream they had, we will achieve that. We will work hard, we will unitedly work, whether it is a different region or a different language, and then bring that particular glory to this particular area. With these observations and my thoughts, I once again thank both the organizations for giving me a chance to speak some words on this very important event. At the end, I pay my tribute to those who were involved in this particular Mukti Sangram, particularly from Kalburgi, Bidar, Raichur, Koppal, Ballari area. Thank you very much. Thank you very much, Ji. We are now very delighted to have Shri Babu Sahib Umte Ji Latur, writer and member of History Study Board. Sir will be talking about Sangharsha in and around Latur, Umarga and its surroundings. Marathwada area. Marathwada area. Please unmute. Okay. Namaste. Namaste. You are audible, sir. You can continue. Okay. Thank you, sir. सबसे पहले मैं हैदराबाद मुक्ति संग्राम इस आंदोलन में जिन्होंने हैदराबाद मुक्ति संग्राम में अपना काम किया, उन सबके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अमृत महोत्सव बड़े शान से पूरे देश में मनाया गया, लेकिन हैदराबाद
जो हैदराबाद नाम का संस्थान था, इस संस्थान का आजादी का अमृत महोत्सव अभी भी उतने उत्साह से मनाया नहीं जा रहा था, लेकिन आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ वहाँ पे सभागार में बैठे हमारे बड़े भाई अरविंद जी रेड्डी सर, विद्या देवधर मैडम, मराठी साहित्य परिषद हैदराबाद और सभी सम्माननीय जो वक्ता है और सभी श्रोतागण हैं, उनको सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पे मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा रीजन जो है उनका क्या योगदान रहा था। ऐसे देखा जाए तो हैदराबाद संस्थान जो है वो 5 भाषा बोलने वाला एक प्रदेश था। इसमें से 3 मेजर लैंग्वेजेस थी और उसमें मराठी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या काफी बड़ी मात्रा में थी। मराठवाड़ा में उस समय 5 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि आज 8 हो गए हैं और अभी अपन कल्याण कर्नाटक जो बोलते हैं उसके 3 डिस्ट्रिक्ट थे और तेलंगाना के टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट थे। उसमें से हर एक रीजन में बहुत ही जोर से ये हैदराबाद मुक्ति संग्राम जो है वो लड़ा गया है, लेकिन मराठवाड़ा एक ऐसा एक स्पेशल पार्ट था जिसको देवधर मैडम ने जैसा कहा कि स्टार्टिंग से निजाम की उस पर बहुत ही दृष्टि थी और हर समय मराठवाड़ा को हर तरफ से तकलीफ देने का प्रयत्न जो है वो किया जाता था। लेकिन योगायोग ये होगा कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम जिसको बोलते हैं हम, क्यों हैदराबाद मुक्ति संग्राम जो बोलते हैं, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मराठवाड़ा में है। आप सभी को स्वामी रामानंद तीर्थ इनका नाम मालूम है। स्वामी रामानंद तीर्थ इनका असली नाम वेंकटेश भवनराव खेड़गीकर ही था और स्वामी जी ये एक्चुअली सिंदगी बोल के एक गांव है बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, एक्चुअली वो कर्नाटक से थे, सिंदगी बोल के नाम का गांव था और वो 1921 में टिप्परगा नाम के एक गांव में आए। अब देखिए 1907 में जैसे कि हैदराबाद में स्कूल स्टार्ट हुआ था, उसी के बाद 1921 में टिप्परगा अभी धाराशिव डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक राष्ट्रीय शाला स्कूल जो है वो स्टार्ट किया था। वेंकटराव देशमुख और अनंतराव कुलकर्णी ये दोनों उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और उन दोनों ने मिलके 1921 में 21 में ये राष्ट्रीय शाला स्टार्ट की थी और वहां पे 1929 में स्वामी जी आए। एक्चुअली स्वामी जी अभी तक वेंकटेश भवनराव खेड़गीकर यही नाम से जाने जाते थे, अभी भी उन्होंने संन्यास नहीं लिया था और वो राष्ट्रीय शाला में आने के बाद उनके साथ बाबा साहेब परांजपे थे और बड़े ऐसा एक स्कूल था जो स्कूल में मराठी लैंग्वेजेस में टीचिंग किया जाता था। आप सभी को मालूम है कि उर्दू लैंग्वेज ही कंपलसरी किया गया था जब से 1884 से, और जब महबूब अली बोल के 6th निजाम राज्य करते थे, उनके बेटे 7th निजाम जो है 7वें निजाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर 1911 में सत्ता पे आए और उनके बाद ही ये सभी सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन जब उर्दू लैंग्वेज की कंपल्शन थी उसी समय 1921 से यहाँ पे मराठी लैंग्वेज में टीचिंग जो है किया जाता था और 1929 में वहाँ पे स्वामी जी आए। स्वामी जी वहाँ आने के बाद उन्होंने 1932 में 14 जनवरी 1932 में स्वामी जी ने वहाँ पे संन्यास लिया और उनका नाम अब स्वामी रामानंद तीर्थ ऐसा हो गया। 1935 तक स्वामी जी वहाँ थे टिप्परगा में और 1935 के बाद वो उस समय का मोमिनाबाद अभी वो बीड जिले में है और मोमिनाबाद का अभी का नाम जो है अम्बे जो है वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ जाने के बाद योगेश्वरी शिक्षण संस्था बोल के एक बड़ी शिक्षण संस्था क्या है वो रिस्टार्ट कर दी। एक्चुअली वो 1918 को स्टार्ट हुई थी और वो बंद गिर गई थी, बाद में वो अभी स्टार्ट कर दिए थे और बड़े पैमाने पे उन्होंने वो काम जो है वो स्टार्ट किया। इसकी एक दूसरी बात जो है आर्य समाज, जैसे कि मैडम ने बोला था कि हिंदू महासभा, आर्य समाज और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस
ये सभी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी मात्रा में हैदराबाद फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम करते थे। और उसमें से अभी मैं जो बोल रहा हूँ आर्य समाज की पहली शाखा जो है धारूर नाम का एक गांव है बीड जिला में, वहां पे स्टार्ट हो गया। और बाद में हैदराबाद में आर्य समाज की एक शाखा जो है वो स्टार्ट हो गई। और बड़े पैमाने पे आर्य समाज का काम हमारे भाग इधर रीजन में चलता था। भाई बंसीलाल, भाई श्यामलाल, माधवराव गोलसीकर, उदयवीर जी आर्य, उनके बाद वीरभद्र जी आर्य, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने एक पूरे रीजन में बड़ी मात्रा में काम जो है स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे आर्य समाज का काम फैलने लगा वैसे इस हमारे रीजन में जो एक बहुत ही सख्त संगठन स्टार्ट हो गई थी उसका नाम था मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। एक्चुअली आप सभी को मालूम है कि मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो है 1927 को हैदराबाद में स्टार्ट हुई थी। और जब बहादुर याजंग वो संगठन के अध्यक्ष पद पर आए उनके बाद वो बहुत बढ़ गई। और एक वकील थे, एडवोकेट थे लातूर में, कासिम रजवी नाम के। अब एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कासिम रजवी ये जो है वो अलीगढ़ से थे, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ विद्यापीठ में उन्होंने BA LLB किया था। और वो यहाँ पे आए थे लातूर में वकीली करने, एडवोकेट थे वो, लायक आए थे। और यहाँ पे वो रहने के बाद उन्होंने वो संगठन में काम करना स्टार्ट कर दिया। बाद में वो धाराशिव डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख बन गए। और देखते ही देखते कासिम रजवी बहुत ही बढ़ गए। उनका जो मुख्य काम था वो सब खून खराबा करना, यही उनका काम था। और ऐसा कहा जाता है कि कासिम रजवी का स्पीच इतना पावरफुल था कि हिंदू लोग जो वो स्पीच सुनते थे वो घबरा जाते थे। और मुस्लिम लोग जो है अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते थे। बाद में इस पूरे रीजन में जब आर्य समाज का काम बढ़ने लगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इवेंट है इसमें हैदराबाद मुक्ति संग्राम में वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो है हुतात्मा वेद प्रकाश जी का बलिदान। शायद आप जानते होंगे हुतात्मा वेद प्रकाश जी ये ऐसा एक नाम है जिनके नाम के उल्लेख बिना हैदराबाद का इतिहास कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। उमरगा नाम का एक तालुका है अभी धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में, और उमरगा के पास 3 किलोमीटर पे गुंजोटी नाम का एक गांव था। वो गुंजोटी नाम के गांव में वेद प्रकाश जी काम करते थे। आर्य समाज का एक नौजवान था, और ऐसा नौजवान था वो सुबह से लेके शाम तक पूरा दिन समाज के लिए काम करने वाले आर्य वेद प्रकाश जी थे। और वेद प्रकाश जी का जो काम है सभी हिंदू लोगों का एक करना, उनके सभी सहयोग जो है उनको मिला के देना, ये बिल्कुल पसंद नहीं था गांव के मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के कार्यकर्ताओं को। और वो हमेशा वेद प्रकाश जी है वो हमेशा तलवार हाथ में लिए रहते थे और जो पहलवान थे, किसी से डरने वाले नहीं थे। एक दिन ऐसा हुआ, भाई बंसीलाल जी इनका एक व्याख्यान रखा गया था गुंजोटी में। देखिए 23 फरवरी 1937 को वो व्याख्यान ऑर्गेनाइज किया गया था। और भाई बंसीलाल जी को लेने के लिए वेद प्रकाश जी जो है उमरगा नाम के गांव गए, अपनी साइकिल लिए और गए हैं। जब वो जाते हैं इधर गांव में क्या क्या हुआ है उनको कुछ मालूम नहीं। इत्तेहादुल के गुंडों ने आजू बाजू के गांव में जो गुंड थे इत्तेहादुल के, वो सभी लोगों को गांव में इकट्ठा किया था और गांव में दहशत जो है वो निर्माण किए थी। और बहुत जोर शोर से उन्होंने गांव के लोगों को पीटना स्टार्ट किया था। शाम में 4 बजे तक वेद प्रकाश जी उमरगा में ठहरे और उनको ऐसा लगा कि अभी बंसीलाल जी नहीं आते, और वो निराश हो गए। और निराश होके वो गुंजोटी में रिटर्न आ गए, अपनी साइकिल लेके घर में गए, खाना खाए। और खाना खाने के बाद वो ऐसा शांत बैठे थे। इतने में ये मजलिसे इत्तेहादुल के जो लोग थे उन्होंने एक अलग नई टेक्निक निकाली और वो वेद प्रकाश जी के घर के सामने आके क्या बोलते उसको स्लोगन देते रहे कि वैदिक धर्म अमर रहे, वैदिक धर्म अमर रहे। ये सुन के वेद प्रकाश जी जो है उल्लासित हो गए। उनको लगा कि बंसीलाल जी आए होंगे, इसीलिए ये सब स्लोगन जो है दिए जा रहे हैं। और वो भागते भागते वो भीड़ में
जा पहुंचे और उन्होंने ऊपर सर उठाकर देखा तो सभी तरफ इत्तेहादुल के जो गुंड थे उनके आसपास थे, कम से कम 150 लोगों ने 150 लोगों ने उनको घेर लिया था। अभी उनके हाथ पे तलवार भी नहीं थी और छोटू खान नाम का एक इत्तेहादुल का गुंड था, उसने उनको बोला अगर तू हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म जो है अगर स्वीकार करता है तो हम तुझे माफ कर देंगे। लेकिन एक प्रखर धर्माभिमानी थे और उन्होंने ये सब रिजेक्ट कर दिया और हाथ में कुछ भी नहीं होके भी वो ये गुंडों से लड़ते रहे और देखते ही देखते तलवार के घाव जो है वेद प्रकाश जी के पूरे शरीर पर गिरने लगे। वेद प्रकाश जी घायल हो गए और वो वहां पे गिर गए। वेद प्रकाश जी के हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के पहले हुतात्मा है। 23 फरवरी 1937 की ये घटना है। गुंजोटी नाम का गांव है, यहाँ आज भी वहां पे आप उनका स्मारक जो है देख सकते हैं। इसी प्रकार के एक के बाद एक घटना जो है घटने लगी थी और इसी समय 1937 में लातूर में महाराष्ट्र परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1937 में। वो अधिवेशन के लिए सभी लोग आए थे, उसमें स्वामी रामानंद तीर्थ भी आ रहे थे। वहां पे स्वामी रामानंद तीर्थ को आनंद कृष्ण वाघमारे बोल के एक जिन्होंने बाद में मराठवाड़ा बोल के वर्तमान पत्र जो है चला है न्यूज़पेपर और उसके वो संपादक भी रहे थे, उन्होंने स्वामी जी को रिक्वेस्ट की कि आप अभी एजुकेशन का जो काम है अपने साथियों को छोड़ दीजिए और आप फुल टाइम ये मूवमेंट जो है पॉलिटिकल मूवमेंट जो है निजाम के खिलाफ उसमें सहभागी हो जाइए। और स्वामी जी को भी लग रहा था कि अभी हमको चुप बैठ के नहीं करेगा और स्वामी जी ने अपने पूरे वहां पे जो उनके सहकारी थे उनको सबको बोला कि आज से मैं ये कार्य करूंगा। और वहां से स्वामी जी जो है हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के काम में जुट गए। आप सभी को मालूम है 1938 को हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की